Hello students and welcome to Virtual Learning Network. This is session 1 for business organization and here we will discuss nature and scope of business. Topics to be covered are human activities, non-economic activities, economic activities, classification of economic activities, business, industry, commerce and organization. Now first is human activities. All the activities in which we participate from morning till night are called human activities. We can classify the human activities into two groups, non-economic activities and economic activities. So जितनी भी activities हम सुबह से शाम तक करते हैं वो सारी ही human activities होती हैं. दो types की human activities होती हैं, non-economic and economic. Non-economic activities are the activities which are conducted by the human beings due to love and affection, social obligation, religious obligation, physical requirement, patriotism, etc. but not for earning money. So non-economic activities वो होती हैं जिनके थ्रू हम मनी नहीं कमा सकते हैं, जैसे कि एक हाउसवाइफ घर में काम करती है या लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन इन अ हाउस, द हाउसवाइफ कुकिंग फॉर द फैमिली, children going to school and playing games, people going to a temple are some such activities. Persons who participate in such activities do not get any direct economic benefit. Next is economic activities. Economic activities वो human activities होती हैं जिनके through हम money earn करते हैं. These economic activities are concerned with production, exchange and distribution of goods and services. For example, a doctor working in the hospital, a teacher working in a school, all doing this to earn his or her livelihood or to acquire wealth. Now, classification of economic activities. We can further classify these activities into three groups. First is business, then profession and employment. Now, business is any activity carried primarily with the objective of earning profit. This objective of earning profit is achieved by production and exchange of want satisfying goods and services. So business activity जो होती है वो होती है सिर्फ एक objective के लिए carry out की जाती है जो कि है profit earn करना. Next is profession. Profession is any activity which involves the rendering of personalized services of a specialized nature based on professional knowledge, education and training. So profession होता है जो एक special knowledge के ऊपर based होता है, एक special learning पे based होता है जो हमारा skill set है, जैसे कि teacher और a doctor. तो इनकी जो services होती हैं वो profession में आती हैं. Next is employment. Any activity assigned to a person by the employer under an agreement or rules of service comes under the category of employment. Now, this is the classification of human activities. Human activities can be classified into economic activities and non-economic activities. And economic activities include business, profession and employment. So, this we have discussed. Business होती है कोई भी एक ऐसी activity जिसका main objective होता है profit earn करना, जैसे production of soaps, sale of eggs, production of TV sets, etc. और प्रोफेशन एक वो एक्टिविटी होती है जिसके थ्रू हम स्पेशलाइज्ड सर्विसेज देते हैं, पर्सनलाइज्ड सर्विसेज देते हैं जो कि हमारी एक स्पेशलाइज्ड नेचर पे बेस्ड होता है, जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एटसेट्रा. एंड एम्प्लॉयमेंट वो एक्टिविटी होती है जो एक एम्प्लॉयर असाइन करता है अब एक पर्सन को. लाइक फॉर परफॉर्मिंग सच एक्टिविटीज द एम्प्लॉय रिसीव्स रेम्यूनरेशन, दैट इज सैलरी, अलाउंस, बोनस एटसेट्रा. And employment is also called service, like working in a factory, office, hotel, college, etc. Now the essential features of business. अब business की कुछ essential features होते हैं जैसे कि dealings in goods and services, production and or exchange, continuity and regularity in dealings, profit motive and element of risk. सो गुड्स और सर्विसेज में तो हमेशा ही डीलिंग होती है जब हम बिजनेस की बात करें. फिर किसी ना किसी चीज़ की प्रोडक्शन होती है या फिर एक्सचेंज होता है. कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है डीलिंग्स में. हम ऐसा नहीं कर सकते कि 1 मंथ के लिए बिजनेस कैरी आउट कर रहे हैं और उसके बाद 6 मंथ्स के लिए हमने उसे स्टॉप कर दिया है.
नेक्स्ट इज द प्रॉफिट मोटिव. प्रॉफिट मोटिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. एंड नेक्स्ट इज द एलिमेंट ऑफ रिस्क. बिजनेस के साथ हमेशा ही रिस्क जो है वो रहता ही है. नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. नाउ the objective of business could be listed under three broad headings: economic active objectives, social objective, and human objective. Economic objectives are basically primary objectives of business, like earning of satisfactory profits, exploring new markets and creation of more customers, growth and expansion of business operations of the firm, making innovations and improvement in goods and services. So economic objective में इकोनॉमी से रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि प्रॉफिट अर्न करना, नई मार्केट्स एक्सप्लोर करना, फिर ग्रोथ बिजनेस की देखना, और उसके बाद न्यू आइडियाज जनरेट करके कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना. फिर सोशल ऑब्जेक्टिव्स. Business being a part of the society has obligations towards the society also, जैसे कि providing more and more employment opportunities, supply of quality goods to the community, then ensure fair returns to investors, avoidance of profiteering and unfair practices, and production of goods in accordance with the national interest. So ये सारे social objectives होते हैं जो society के लिए होते हैं. Then human objectives. Human objectives are such as fair deal to customers, जो humanity को represent करते हैं, human beings के लिए होते हैं, जैसे कि employees को ज़्यादा कम wages पे ना काम करवाना उनसे. फिर providing better working conditions to employees, provide job satisfaction, then provide the employees more and more promotional or growth opportunities. Next is the classification of economic activities. Economic activities को हम अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम बेस कर सकते हैं, जैसे कि फीचर्स. फर्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट. बिजनेस जो होता है, बिजनेस एक इंडिविजुअल ग्रुप होता है और या फिर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है. इसमें क्या होता है, लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं जैसे कि रजिस्ट्रेशन एटसेट्रा. प्रोफेशन हम एक्वायर करते हैं अपने क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, और एम्प्लॉयमेंट होता है एक तरह से एम्प्लॉयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे. नेक्स्ट फीचर देखिए, अगर क्वालिफिकेशन, तो बिजनेस के लिए कोई भी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती. प्रोफेशन के लिए एक नॉलेज की जरूरत होती है जो प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए, और ट्रेनिंग की जरूरत होती है. एंड फॉर एम्प्लॉयमेंट सम केसेस में स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस की जरूरत पड़ती है और कुछ केसेस में जरूरत नहीं पड़ती. जैसे कि जो मिस्त्री होते हैं उनको कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो डेवलपर्स होते हैं उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट के लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है. नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट में कैपिटल की बहुत ज़रूरत होती है, पैसा चाहिए होता है. एक्चुअल अमाउंट जो होता है वो बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करता है. उसके बाद प्रोफेशन में जो इन्वेस्टमेंट होती है उसमें कुछ अमाउंट चाहिए एक ऑफिस को स्टैब्लिश करने के लिए, और एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती. देन नेचर ऑफ वर्क. नेचर ऑफ वर्क अगर हम देखें तो बिजनेस में नेचर ऑफ वर्क होता है प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. उसके बाद प्रोफेशन में होता है जिसमें हम स्पेशलाइज्ड सर्विसेज रेंडर करते हैं. देन इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, परफॉर्मिंग द वर्क असाइन्ड बाय द एम्प्लॉयर अंडर द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इज नेसेसरी. देन नेक्स्ट इज मोटिव. अगर मोटिव की बेसिस पे देखें तो बिजनेस में मेनली प्रॉफिट जो होता है वही उनका मोटिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है. प्रोफेशन में फी चार्ज होती है और उसके बेसिस पे सर्विसेज मिलती हैं. देन एम्प्लॉयमेंट में कोई भी स्पेसिफिक मोटिव नहीं होता. रिवॉर्ड्स में बिजनेस के केस में रिवॉर्ड होता है प्रॉफिट, प्रोफेशन के केस में प्रोफेशनल फीस होती है, और एम्प्लॉयमेंट के केस में वेज और सैलरी होती है. नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप इंटरेस्ट. फर्स्ट इज by following required legal formalities business can be transferred to others. प्रोफेशन के केस में ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है और ना ही एम्प्लॉयमेंट के केस में है. लास्ट इज रिस्क. अब बिजनेस के केस में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है. देन इन प्रोफेशन पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एनफ फी
to meet the expenditure on establishment is the risk, and employment के केस में कोई रिस्क नहीं होता क्योंकि जो सैलरी डिसाइड हुई है वो तो मिलनी ही है. Now next is the classification of business. We may classify business activities into two categories. In the first category, we can group all the business activities relating to productions, and similarly, all the activities relating to exchange may be grouped under the second category. The first category is known as industry, while the second is the commerce. So industry को हम ऐसे ले सकते हैं कि वो एक तरह से सारा ग्रुप है उन बिजनेस एक्टिविटीज का जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है, और कॉमर्स होता है एक्सचेंज से, यानी कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स पहुंचाना, सप्लायर को, जो सप्लायर है वो गुड्स कैसे पहुंचाता है, वो सारा कॉमर्स में आ जाता है. नाउ फर्स्ट इज इंडस्ट्री. Industry refers to that part of business activities which is concerned with the production of want satisfying goods through utilization of available material resources. So industry जो होती है वो होता है सारी वो business activities जो कि हमारी production से concerned होती हैं, जो, और प्रोडक्शन किस चीज की होती है, जो हमारी वांट सेटिस्फाइंग गुड्स है, यानी कि जो कस्टमर को चाहिए उसके हिसाब से जो प्रोडक्शन होती है वो सारी बिजनेस एक्टिविटीज आ जाती हैं इंडस्ट्री में. इंडस्ट्री यूटिलाइजेस द नेचुरल रिसोर्सेज एंड ब्रिंग्स देम इनटू द फॉर्म यूजफुल फॉर फाइनल कंजम्पशन और फर्दर यूज. सो इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करती हैं और उनको एक कंजम्पशन based form में लेके आती हैं. It means that the industrial activities aims at ensuring the supply of goods in that form which suits the objects, needs and convenience of the persons expected to use them. Thus, industry creates form utility to goods. For example, farms, factories, mines, etc. make available a wide range of goods. Next is the classification of industry. Now on the basis of nature of activity, हम इंडस्ट्रीज को अलग अलग टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं. नेचर ऑफ एक्टिविटीज से एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज होती हैं. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें हम एक्सट्रैक्ट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, जैसे कि माइनिंग, फार्मिंग, क्वेरिंग, हंटिंग, फिशिंग एक्सेट्रा. जेनेटिक इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे रिप्रोडक्शन से कंसर्न होती हैं या ब्रीडिंग से, जैसे कि नर्सरीज, पोल्ट्री फार्म्स, cattle breeding farms etc. Then manufacturing industry as the name suggests manufacturing से related होती हैं जहाँ पे हम मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट्स, जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री. एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड होती हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, डैम्स, रोड्स एक्सेट्रा. देन नेक्स्ट इज दी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, कि हम किस टाइप के गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. इसमें आ जाती है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री एंड प्रोड्यूसर गुड्स इंडस्ट्री. कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री में आ जाती है जो कंज्यूमर से रिलेटेड होते हैं, और प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं जो प्रोड्यूसर के लिए, जैसे रॉ मटेरियल वगैरह. एंड ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट we have heavy industries and light industries. heavy industries हो जाती हैं जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एंड लाइट इंडस्ट्री जैसे कि हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड इंडस्ट्रीज. देन ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द एक्टिविटी, जो साइज है एक्टिविटीज का, जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आ जाती है जो जहाँ पे कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, और लार्ज स्केल होती है जहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है. देन ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ ऑपरेशन, की हम कहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं. रीजनल इंडस्ट्री, नेशनल एंड मल्टीनेशनल इंडस्ट्री. रीजनल इंडस्ट्री होती है जो एक ही रीजन में कन्फाइंड होती है. नेशनल इंडस्ट्री जो एक कंट्री के अंदर जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस हो सकती हैं. और मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज होती हैं जो अलग अलग कंट्रीज में होती हैं जिनकी ब्रांचेस. नेक्स्ट इज द कॉमर्स. Now all the activities which establish link between the producers of goods and consumers of these goods and maintain a smooth and uninterrupted flow of goods between them come under commerce. So वो सारी activities जो producers और consumers के बीच में link setup करती हैं कि कौन goods को produce कर रहा है और कौन consume करेगा, और उनमें पूरा flow इजीली मेंटेन हो पाता है, तो वो जो एक्टिविटीज होती हैं वो होती हैं कॉमर्स.
नाउ बैरियर्स एंड हिंड्रेंसेस टू कॉमर्स. अब इसमें बहुत सारी हिंड्रेंसेस आती हैं जो कि कॉमर्स में कभी कभी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, जैसे कि हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन, नॉलेज, टाइम, प्लेस. नाउ हिंड्रेंस ऑफ पर्सन आ जाती है, जैसे कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर एक दूसरे को आइडेंटिफाई ना कर पाए, उन्हें ना पता हो कि कैसे गुड्स एक्सचेंज करने हैं. देन हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज ये आ जाती है, जैसे कि अब जहाँ पे इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है, कंज्यूमर को जब पता ही ना हो कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है जो उनको जरूरत है जिनकी. देन हिंड्रेंस ऑफ टाइम होती है, जो गैप आ जाता है फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्शन टू द टाइम ऑफ कंजम्पशन. तो इसके बीच में जो टाइम गैप है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है कि उस टाइम के लिए गुड्स को कहाँ रखें. देन हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, प्लेस जहाँ पे प्रोडक्शन हमें कहाँ करनी चाहिए, कंज्यूमर के पास करनी चाहिए या जहाँ से रॉ मटेरियल लेना है वहाँ पे. तो वो जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस. नाउ नेक्स्ट इज now there are two main aspects in commerce. First is the purchase and sale of goods, and next is the activities essential for the smooth and uninterrupted flow of goods. Now परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स और एक्टिविटीज जो हमारी एक अनइंटरप्टेड फ्लो बनाती है, जो गुड्स की मूवमेंट को इजी करती है. तो ये दोनों चीजें इसके मेन एस्पेक्ट होते हैं. Now therefore we can classify the whole range of commerce activities into two categories. First is the trade activities of purchase and sale, and second is the aids to trade activities which facilitate the smooth and uninterrupted flow of goods. Now trade includes sale, transfer or exchange of goods, then and services with the intention of earning profit. The objective of trade is to make goods available to those person who need them and willing to pay for them. So trade के अंदर sale and transfer आ जाता है goods का, और services का जैसे प्रॉफिट अर्न करने के लिए चाहिए. मेन ऑब्जेक्टिव होता है ट्रेड का कि गुड्स को पर्सन्स को अवेलेबल कराएं, यानी कि जिन कंज्यूमर्स को गुड्स कंज्यूम करने हैं उन तक पहुंचाना. सो गुड्स को हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट इज द इंटरनल ट्रेड एंड देन एक्सटर्नल ट्रेड. नाउ इंटरनल ट्रेड, when the trade takes place within the boundary of the country you can call it internal. जब internally होता है trade तो वो internal trade. On the basis of the scale of production we can classify internal trade into wholesale trade and retail trade. Wholesale trade होता है buying and selling in relatively larger quantities which is called wholesale trade. wholesale में जब sale करते हैं. और retailer trade या retail trade होता है जो कि एक स्मॉलर क्वांटिटी की बाइंग और सेलिंग से रिलेटेड होता है. नाउ एक्सटर्नल ट्रेड इज व्हेन द ट्रेड टेक्स प्लेस अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री. यू कैन कॉल सच ट्रेड एज एक्सटर्नल ट्रेड. और इसमें भी कैटेगरीज होती हैं, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड री एक्सपोर्ट ट्रेड. इंपोर्ट ट्रेड होता है जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से गुड्स खरीदती है तो वो इंपोर्ट होता है. एक्सपोर्ट इज व्हेन एक कंट्री दूसरी कंट्री को गुड्स बेच रही है. एंड री एक्सपोर्ट ट्रेड इज, इसको हम एंट्रीपोर्ट ट्रेड भी कहते हैं, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से गुड्स इंपोर्ट करती है और तीसरी कंट्री को बेचती है. दैट इज री एक्सपोर्ट ट्रेड. नाउ एड्स टू ट्रेड होते हैं जो हमारी हिंड्रेंसेस आई थी कॉमर्स में, उसको हटाने के लिए. Activities which facilitate the trade are called aids to trade. Thus, all human activities which eliminate the hindrances and facilitate the flow of goods from producer to consumer comes under aids to trade. They are also called auxiliaries to trade. The whole range of activities coming under aids to trade may be classified into 5 categories: transportation, warehousing, insurance, advertising and banking. नाउ ट्रांसपोर्टेशन जो होती है वो हमारी हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को खत्म करती है, जैसे कि जो कि कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स पहुंचाए जाएं. फिर वेयर हाउसिंग हमारी हिंड्रेंस ऑफ टाइम को खत्म करती है कि प्रोडक्शन से कंजम्पशन के बीच में जो टाइम गैप होता है उसमें
एक गुड्स को जैसे स्टोर करना है तो वो हम वेयर हाउसिंग के थ्रू करते हैं. इंश्योरेंस इज द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क को खत्म करने के लिए, कि रिस्क जो होता है उसको खत्म करने के लिए हम इंश्योर करा सकते हैं अपने बिजनेस को. देन एडवर्टाइजिंग इज द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज को खत्म करने के लिए हम एडवर्टाइज करते हैं ताकि कंज्यूमर्स तक पहुंच सके हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स. उसके बाद बैंकिंग इज द हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, जैसे कि जो हमारी फाइनेंस है कि हमारी कंपनी के लिए कैपिटल कहाँ से आएगा, तो वो हम बैंक से फाइनेंस करा सकते हैं थ्रू लोन्स. नेक्स्ट इज द ऑर्गेनाइजेशन. अ बिजनेस एक्टिविटी बिकम्स अ रियलिटी ओनली व्हेन एफर्ट्स आर मेड to bring the required resources together, but then at work systematically and coordinate their activities properly. This is referred to as business organization. So वो एक business activity जहाँ पे efforts लगते हैं ताकि required resources को एक साथ बना सके, उसके बाद उन्हें सिस्टमैटिकली रख सके और सारी एक्टिविटीज को प्रॉपरली कोऑर्डिनेट कर सके. सो ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है. एंड इन द ओपिनियन ऑफ J.W. Schultz, ऑर्गेनाइजेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेसेसरी थिंग्स, मटीरियल्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, working space apparatus and finance brought together in a systematic and effective correlation to accomplish some desired objective. Oliver Sheldon defined it as the process of combining the work which individuals and groups have to perform with the facilities necessary for its execution so that they provide the best channels for efficient, systematic, positive and coordinative application of the available effort. Now, ऑर्गेनाइजेशन को हम ओनरशिप और मैनेजमेंट के बेसिस में 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं. सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, company and cooperative society. These 4 will be discussed in the second session. Now here are some questions for you. First is, what do you mean by industry? Second is, what do you mean by trade? What are the different types of trade? That's all for this session. Thank you and have a nice day.